languages. When we speak our language, when we translate, there the use of preposition is quite different. And that may be the reason, that's why we are in difficulty to understand or to put them in a proper way. This is the most difficult one there. So we have been trying, we have been having the practice of such prepositions in the sentence in order to reach the accuracy, okay, or the correction. So please don't be in trouble or in panic that now the prepositions are almost difficult and not to be covered or not to be properly understood. There's no such issue or the problem there, because as I have given you the test, and that test is very important one, and how to manage and how to pick out the errors or how to understand them, because we almost make three mistakes in prepositions. One mistake is that when the preposition is not necessary, okay, we use it there, or when preposition is necessary, we avoid or we forget to put the correct preposition there. These are the big errors or the drawbacks that we don't realize or feel while attempting the right choice in the sentences there. The other one is that we need to put appropriate preposition in different situations or the places or the activities. That is another reason. But I would like to tell you that as far as these small symbols like prepositions, so very small words like the prepositions are concerned, you have noticed, okay, as these prepositions are concerned, they are totally related to the use, to the meaning, okay, or to the concept. So I have explained all the concept of these prepositions, because somehow the prepositions have the same or the the resemblance there, like it is concerned, on is concerned, or on to is concerned, above is concerned, or over is concerned, like such prepositions. They have somehow the resemblance in meaning. When we translate them, we feel that they are almost same in the meaning. But I have taught you that they are widely different from each other if you understand them in an easy way. While over and above is concerned, as far as their concept of height is concerned, because both of these prepositions are used for the height. When something is higher than, okay, then we use above and over. But I tell you clearly that above is almost used in the sense of vertical, okay. When something is vertically higher, then we use the preposition above there. While over is concerned, it is higher, but it is somehow covering sense, okay. It is somehow spreading sense. So when the sense is like that, we differentiate between both of these prepositions, that above is used in this concept while over is used somehow differently when there. So these two prepositions to be understood. And as far as under and below is concerned, as I've told you, that you should have the opposite, of above is below and the opposite of over is under. So understand them in the concept of this situation, of this resemblance, that under is once again used in what sense? When it covers something, okay, when it covers something. As I have practically given you the examples, small examples, okay, ordinary examples of things here in my classroom, that how to put the word, okay, or the thing in the use of preposition under there. So under is just completely the opposite of over. Is over cover something, okay, from the higher position. Similarly, the under also covers something in a lower position. While below is concerned, it is lower, but it is once again like a vertical one there. So this is what you have to create, you have to make, you have to practice, you have to discover and detect your personal tips, personal easy situation to understand, to reach the accuracy there. As far as my personal efforts are concerned, I'm trying myself best to explain or to make you understand. And if you have any of the gap, any of the lack in understanding these prepositions, dear students, you should try to understand, try to practice them more and more. Okay, this will give you the accuracy. So here we have got a test of 35 questions, and this is very simple one there. Simple test is given in order to
enhance your understanding level. I don't mean that I should complicate your understanding or your concept. I don't mean to, give you the difficult or the typical sentences there. But initially, we should come to learn the comprehension of these prepositions, and then we'll be able to feel easiness or comfort that these prepositions are used in such situation. So it's actually the first portion or first section of the preposition which we are discussing. It's not so that now almost all the prepositions are completed and it's the last day of the prepositions. No, dear students, we have still many prepositions, okay, to be taught, to be covered from the next week, okay, and they will be the part and parcel of your upcoming next test. So here we have just like the list of these prepositions. Conceptually, I have discussed them, and hopefully now all of them have been covered. And if you feel any late, inshallah, today's test lecture will help you understand all of them once again, right? So come back to join me. The test here, as almost everybody is demanding, sir, key should be given. So key should be, I think, explained in a better way. Otherwise, you will feel once again the problem there. So let's come to discuss now. तो बेटा देखें, वो मतलब हम उन प्रीपोजिशंस को देखते हैं, आपको बताते हैं कि जो प्रीपोजिशंस हमने डिस्कस किए हैं, यस, तो सबसे पहले हम सेंटेंस कंप्लीशन स्पॉट द एरर पे आते हैं। स्पॉट द एरर पे ही पहले जो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपने अब सारे प्रीपोजिशंस कर लिए होंगे यकीनन आपने, क्योंकि ये कल मैंने टेस्ट बना के दे दिए, क्योंकि आप जो चीज बोलते हो वो कोशिश करके मैं उसी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि आप इसीलिए बोलते हो, उसमें आपको आसानी होती है, इसलिए आप कहते हो। तो आप देखो बेटा, इसके अंदर द ट्रेन पास्ड अक्रॉस द नैरो पैसेज ऑफ द माउंटेन एट 2 o'clock। अब आप देखो इधर तकरीबन 2 प्रीपोजिशंस हमने इस्तेमाल किए, एक इधर अक्रॉस इस्तेमाल किया है, एट 2 o'clock इस्तेमाल किया है। 2 प्रीपोजिशंस हैं, दोनों प्रीपोजिशंस को आप देखें बेटा, देखो ये हमारी एक एरर हो जाएगी। और ये क्यों एरर हो रही है? ये इसीलिए एरर हो रही है क्योंकि नैरो पैसेज, मतलब मैंने थोड़ा ये कॉन्सेप्ट दिया है, नैरो पैसेज या इनक्लोज्ड पैसेज, जो इनक्लोज्ड प्लेस होती है तब देखो आप अक्रॉस इस्तेमाल करते हो प्रीपोजिशन। उसके बाद सेकंड देखो, यानी जो स्पेसिफिक टाइम जो होता है, स्पेसिफिक बेटा जो टाइम होता है या पॉइंट स्पेसिफिक जो होती है, उसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। वो टाइम हो या प्लेस हो, अगर कोई प्रिसाइज, एग्जैक्ट, शॉर्ट, ब्रीफ, स्पेसिफिक पॉइंट टाइम में हो या जो है वो यानी प्लेस में हो, तब हम देखो इस्तेमाल करते हैं एट। प्लेस में भी किसी जगह पर अगर कोई पार्ट या प्लेस का हो, कोई पोर्शन हो एग्जैक्ट लोकेशन के तौर पर, तब भी एट इस्तेमाल करते हैं। और टाइम में भी आप देखो, जैसे डे का कोई मतलब पार्ट होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पार्ट जो डे का होता है, तो उसके साथ देखो हम एट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा देखो, समवन इज ऑन टू द डोर नॉकिंग कंटिन्यूअसली। अब मैंने ये दिया है नॉकिंग, तो शायद स्टूडेंट समझे कि ऑन टू सही है क्योंकि नॉकिंग हो रही है इसीलिए। नहीं बेटा, समवन इज एट द डोर होगा, क्योंकि ऑन टू द डोर मतलब दरवाजे के ऊपर, मतलब उसकी सरफेस के ऊपर। तो ये मतलब कुछ पॉसिबल सेंस या कोई अच्छे सेंस नहीं है, इसीलिए इधर यानी ये बी ऑप्शन आएगा आपका, ये वाला बी ऑप्शन होगा। और ये हो जाएगा समवन इज एट द डोर नॉकिंग कंटिन्यूअसली। समवन इज एट द डोर, जैसे एट द डोर, जैसे मैं बोर्ड पे मतलब खड़ा हूं, ये एट द डोर होगा इस तरीके से। या मैं कैमरा पे जैसे आप देखें, या किसी चीज पे आप इस्तेमाल करते हो, किसी डाइस होती है, डेस्क या डेस्क होती है तो हम एट इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड होता है तो हम एट इस्तेमाल करते हैं, डाइनिंग टेबल होता है तो हम एट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एट से मुराद बिसाइड भी होता है, करीब वाला सेंस भी एट का जो है वो होता है, ठीक है। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, समवन इज एट द डोर नॉकिंग कंटिन्यूअसली। उसके बाद देखो बेटा, आई यूज्ड टू लिव ऑन 51 द बस स्टॉप व्हेन आई वाज अ चाइल्ड।
अब एक तो देखो बस स्टॉप लिखा हुआ है और नंबर 2 देखो एड्रेस दी हुई है। मैंने आपको अपनी एक्सप्लेनेशन में बताया था कि अगर एड्रेस की बात हो, किसी लोकेशन की बात होती है, तो देखो हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो एट इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? एट इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस साथ रखे हुए ये एट इस्तेमाल करेंगे। मैं की अल्फाज भी साथ साथ रखता जाता हूं ताकि आपको वो क्लियर भी हो जाए। तो एट इस्तेमाल करेंगे। 51 देखो ये एक एड्रेस है बेटा। अगर स्ट्रीट की एड्रेस होती है, ठीक है, मोहल्ले या स्ट्रीट की एड्रेस होती है, तो भी हम प्रीपोजिशन जो इस्तेमाल करेंगे वो एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद 4 है, ही मेट मी ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एंड टोल्ड द सीक्रेट। अच्छा, अब देखें ये वही बात हुई, मैंने आपको कहा कि कॉर्नर मतलब एक एड्रेस, लोकेशन या पॉइंट है एक, इसीलिए इधर भी जो आपका प्रीपोजिशन आएगा वो प्रीपोजिशन एट आएगा। ही मेट मी एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एंड टोल्ड द सीक्रेट, आप देखेंगे होगा। उसके बाद नंबर 5, आई यूज टू लिव एट फैसलाबाद। देखो ये एट नहीं होगा, किसी सिटी या विलेज के लिए हम जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं? इन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इनक्लोज्ड प्लेस को शो करता है, तो इसीलिए। और मे का भी मतलब हो रहा है, तो आप इधर जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे इन। आई यूज टू लिव इन फैसलाबाद एंड अर्न फॉर माई लिविंग। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 है, इन माई इंग्लिश लेसन आई ऑलवेज सिट अलोंग माई फ्रेंड। देखो ये अलोंग गलत हो गया, ठीक है ना, हालांकि हमने अलोंग पढ़ा है। अलोंग कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप किसी लाइन या किसी जो है वो ट्रैक पे, अगर आपकी पैरेलल मूवमेंट हो, किसी लाइन या ट्रैक पे पैरेलल मूवमेंट हो, तो आप अलोंग इस्तेमाल करेंगे। देखो इस तरीके से अगर कोई मूवमेंट हो तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? आप अलोंग इस्तेमाल करेंगे। पैरेलल कोई मूवमेंट हो जो कि किसी ट्रैक या लाइन पे हो, हम तब इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर इधर होता अलोंग विद तो ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। अगर हम इस्तेमाल करते अलोंग विद तो ये दुरुस्त होता है, लेकिन इधर सही नहीं है। इधर फिर क्या सही होगा? इन माई इंग्लिश लेसन आई ऑलवेज सिट अलोंग माई फ्रेंड। ओके, तो आप विद माई फ्रेंड कह सकते हैं, बिसाइड माई फ्रेंड कह सकते हैं, बाय माई फ्रेंड कह सकते हैं, नेक्स्ट टू माई फ्रेंड कह सकते हैं। तो ऐसा मतलब आप जो वो प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव। अच्छा, तो आप बेटा इधर जो है वो अलोंग के साथ बिसाइड इस्तेमाल करें, बाय इस्तेमाल करें, ठीक है, अलोंग विद इस्तेमाल करें, ये सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। 7 देखो, द डॉग स्क्वीज्ड बिलो। स्क्वीज्ड मतलब दब गया, बिल्कुल प्रेस हो जाना है, ठीक है, स्क्वीज्ड। तो वर्ड को मत समझे, देखें तो जाहिर है बिलो तो वो अलग बात होती है। बिलो तो मतलब आप देखें नीचे होता है, लेकिन स्क्वीज्ड वाले सेंस में नहीं होता, उसके सरफेस के बिल्कुल अंडर नहीं होता, तब हम बिलो इस्तेमाल करते हैं। खाली वो लोअर होता है किसी मतलब जो वो हिसाब से। तो इधर देखो आपका जो दुरुस्त ऑप्शन आएगा वो आपका अंडर आएगा। अच्छा, द गेट एंड रेन इनटू द क्राउड। देखो ये मूवमेंट है बेटा। देखो फ्रॉम यानी स्क्वीज्ड बिलो द गेट एंड रेन इनटू द क्राउड, मतलब देखो क्राउड थे तो मतलब वो बाहर से अंदर क्राउड की तरफ गया, तो इसीलिए हमने देखो आउटसाइड टू इनसाइड वाली है, तो हमने ये इस्तेमाल कर लिया, क्या? इनटू इस्तेमाल किया, इसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है बिसाइड वर्किंग। बेटा इन प्रीपोजिशंस को देखो, एक होता है बिसाइड जो हमने एक्सप्लेन भी किया है। अच्छा, एक होता है बिसाइड और दूसरा क्या होता है? बिसाइड्स। ये दोनों प्रीपोजिशंस होते हैं। देखो बिसाइड्स से मुराद जो हमने इधर इस्तेमाल किया है, यानी नेक्स्ट टू, एट द साइड ऑफ, बाय, क्लोज टू, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बिसाइड से मुराद क्या? इन एडिशन टू, के बगैर, के सिवा, इसका सेंस होता है। तो इधर देखो आप जुमला भी पढ़ेंगे, मीनिंग भी देखो, जैसे लिखा हुआ है बिसाइड वर्किंग एज अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के सिवा, डॉक्टर के प्रोफेशन के सिवा, देखो ये कहता है ये। अच्छा, तो ये होगा बिसाइड्स वर्किंग, यानी उसके डॉक्टर मतलब ये करीब वाला मामला। तो इधर दो पर्सन या दो थिंग्स, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई करीब वाला मामला होना चाहिए इस तरीके से, तो वो तो हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इधर जो आ रहा है इन एडिशन टू, के सिवा, तो आप देखिए बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर ही ऑल्सो राइट्स नॉवेल्स इन हिज स्पेयर टाइम। तो देखो ये आपके इस तरीके से हो गए।
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा। तो नेक्स्ट हमारा है, हाँ नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन का है। देखो, द थीफ गॉट इन डैश दैट ओपनिंग ऑफ द मेन गेट। ओके, ओपनिंग ऑफ द मेन गेट। अब ओपनिंग मतलब आप देखो कोई मतलब थोड़ी सी गेट से ओपनिंग जो होती है, ठीक है, वो भी उस एंट्री जो होती है वो हो सकती है। तो इसका बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है। आप देखो अक्रॉस बेटा आप तब इस्तेमाल करेंगे जब प्लेन मूवमेंट होती है, तब हम इस्तेमाल करते हैं। ओपन मूवमेंट होती है हम तब इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मूवमेंट जो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हो, हम तब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। द विंड विसिल्ड डैश द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो देखो, द विंड विसिल्ड डैश द, इसमें भी थ्रू आएगा बेटा। द विंड विसिल्ड थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। देखो मतलब उनमें से अंदर पैसेज की बात हो रही है। अक्रॉस ओपन नहीं हो रहा, ठीक है बेटा, इनटू भी नहीं हो रहा, ऑफ भी नहीं हो रहा। तो मतलब एक जो थिकनेस होती है, आप देखो थिकनेस या डेंस कोई चीज होती है, तो वहां से अगर कोई मूवमेंट होती है तो हम देखें इस्तेमाल थ्रू करते हैं। फिर क्राउड के लिए मैंने करवाया, रश के लिए मैंने करवाया, ट्रीज के लिए देखो मैंने आपसे ये मतलब करवाया। तो इन सब में देखो क्या है, इन सब में एक डेंसिटी होती है या थिकनेस होती है। तब देखो ये मतलब वहां से गुजरना, पास होना, तो इस तरीके से होता है। यहाँ भी वही मतलब चीज आ रही है। अच्छा, उसके बाद 3 है, शी स्वाम। स्विम का सेकंड फॉर्म है रेस द रिवर टू टेस्ट द एबिलिटी। देखो, तो इसमें आप 20 सेकंड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसमें 20 सेकंड होगा। शी स्वाम अक्रॉस द रिवर टू टेस्ट द एबिलिटी, यानी फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिवर टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। दैट इज व्हाई दिस प्रीपोजिशन इज मोस्ट सुटेबल वन टू पुट हियर। वाइल थ्रू देखें, ओपन के लिए नहीं है। ओवर देखें, मतलब हायर देन के लिए होता है। टू तो होता है किसी डायरेक्शन के लिए, लेकिन इधर जो है वो अक्रॉस जो ज्यादा सुटेबल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये भी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अक्रॉस जो है वो बहुत सुटेबल है, प्लेन मूवमेंट जो होती है। 4 नंबर, आई केम हियर डैश माय बाइक एंड अटेंडेड द पार्टी। देखो, आई केम हियर ऑन माय बाइक, ठीक है बेटा। ऑन जो मतलब बेक पे, किसी भी बेक वगैरह होता है और वो सरफेस को ही शो कर रहा है, इसीलिए हम देखो इधर इस्तेमाल करेंगे आई केम हियर ऑन माय बाइक एंड अटेंडेड द पार्टी। इन नहीं होता क्योंकि इनसाइड इसकी होती नहीं है, ठीक है। ऑफ माय बाइक भी नहीं होता, ऑन टू भी नहीं है। हमें लग रहा होगा कि ऑन टू बेटा इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, आप खाली उसके ऊपर जो सरफेस पे स्टैटिक पोजीशन में बैठे हैं। कौन सी मूवमेंट आप कहते हैं कि सर हम बहुत तेज चलाते हैं, तो वो भले आप चलाएं लेकिन अपना ख्याल भी रखें। उसके बाद नंबर 5 है, शी इज डैश या टैक्सी। अब देखो ये एक रूम की बात हो रही है, जैसा कि अंदर जो वो इनसाइड की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम डी इस्तेमाल करेंगे। शी इज इन अ टैक्सी एंड गोइंग टू विजिट द सिटी। तो आप देखें बिल्कुल आगे वाला सेंटेंस सही बता रहा है, इनसाइड की बात हो रही है। आप चेक करना आपके कितने दुरुस्त होते हैं। उसके बाद 6 है, he stayed peacefully dash a village at right। he stayed ओके पीसफुली इन अ विलेज, ठीक है बेटा। इन अ विलेज में का मतलब आ रहा है, इसीलिए हम इधर जो है वो इन इस्तेमाल करेंगे। इन अ विलेज, इन द सिटी, ओके, ऐसे हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इन यानी इनसाइड की बात होती है, इधर एट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इन इस्तेमाल करेंगे। दुरुस्त मतलब सी जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होता है। हम ज्यादा बोलते हैं कि भाई छोटा या बड़ा जो शहर वगैरह, इस हिसाब से हमारी ये चीजें पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्रिसाइज कोई पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही स्टेड पीसफुली इन अ विलेज एट ओताक, ओके, एट ओताक आप जो वो मतलब आप बोल सकते हैं, इस तरीके से आप भले लगा लें। अच्छा, उसके बाद 7 है, द कार पार्किंग इज डैश द बिल्डिंग, ठीक है। द कार पार्किंग इज डैश द बिल्डिंग, बेटा इधर इसमें सी राइट ऑप्शन होगा। द कार पार्किंग इज बिहाइंड द बिल्डिंग, ठीक है। ये होगा थ्रू द बिल्डिंग, अक्रॉस द बिल्डिंग, इनटू द बिल्डिंग, ये है नहीं क्योंकि इसमें जो वो मूवमेंट वगैरह की बात होती है, तो इधर आप इस्तेमाल ये नहीं करेंगे। बिहाइंड जो है वो इन उस बिल्डिंग के पीछे जो होता है। तो इस तरीके से ये आपका 7 वाला। 7 के बाद 8 है बेटा। देखो, द सन डिसअपियर्ड डैश द क्लाउड्स। देखो ये एट द बैक ऑफ, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था
कि बिहाइंड, बेटा ये सारे खुद प्रीपोजिशंस मीनिंग भी आपको दे रहे हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल वर्ड्स हैं, इनमें कोई इतनी बड़ी मुश्किलात नहीं है, तो ये मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 में आप देखें, द प्रिजनर सेड डैश द टू पुलिसमैन, टू की बात हो रही है, तो आप देखो टू के लिए बिल्कुल क्लियरली हम इस्तेमाल करेंगे बिटवीन। इसका बिटवीन का अलग भी यूज है, वो हम अलग इस टेस्ट के बाद आपको बताएंगे, ठीक है। देखो कीवर्ड दिया हुआ है, उसके बाद 10 आई हेल्ड द पेन डैश माय थंब एंड फिंगर्स, लेकिन भले ज्यादा है फिंगर्स, लेकिन देखो बात तो दो की है बेटा, थंब एंड फिंगर्स देखो दो हो गए, एक मतलब फिंगर्स दूसरा थंब, तो दो की बात हो गई, तो इस इधर भी हम जो इस्तेमाल करेंगे वो बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर होता खाली फिंगर्स तो आप अमंग इस्तेमाल करते, तो ये दो की बात हो गई, इसीलिए इधर आप कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे आप बिटवीन। उसके बाद 11 है, ठीक है, द कार वाज पार्क डैश द गेट, ओके, डैश द गेट, आप देखें अक्रॉस द गेट, थ्रू द गेट, अक्रॉस मतलब फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड तो होता नहीं है, थ्रू भी नहीं होता, ऑन द गेट नहीं होगा बेटा, ऑन द गेट कैसे होगा, गेट पे मतलब हम जो थोड़ी मतलब गेट के ऊपर जो है वो पार्क करेंगे, तो इधर जो है राइट ऑप्शन हमारा हो रहा है ए, यानी इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद 12 देखो प्रीपोजिशन का सेंटेंस है, द क्रिमिनल वाज क्वेश्चन डैश द जज फ्रॉम द जज, बाय द जज दुरुस्त हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं इस्तेमाल किया, देखो बाय द जज आसान है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, यानी समबॉडी वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो। द क्रिमिनल वाज देखो क्वेश्चन थ्रू द जज, बिटवीन द जज नहीं, इसमें भी हम डी यानी इन फ्रंट ऑफ द जज, मतलब जज के सामने, मैंने आपको बोला कि सामने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ भी। हाँ, मोस्टली इन फ्रंट ऑफ जो इस्तेमाल होता है वो समथिंग के लिए होता है, लेकिन आप इधर इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी सामने वाले सेंस में, ये या बिफोर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल होते हैं सामने वाले सेंस के लिए। 13 पे हम आते हैं, 13 पे देखो हम मतलब अल्फाज भी वहां दिए हुए, ही सेट नेक्स्ट टू बिसाइड बाय द डोर ऑल द नाइट, वो सारे ऑप्शंस जो थे वो इधर लग गए ऊपर जो है जुमले के अंदर, तो आप देखें ये सब के सब डी ऑप्शन हो गया, राइट हो गए भाई। देखो जो हमने आपको पहले ही बताया था, बिसाइड भी करीब होता है, नेक्स्ट टू भी करीब वाले सेंस में होता है, और बाय भी करीब वाले सेंस में होता है, तो ये आपके सारे ऑप्शन सही हैं। उसके बाद 14 है, शी स्टडीड डैश द मॉर्निंग, क्या शी स्टडीड डैश द मॉर्निंग, तो आप देखें इन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, ऑन, देखो यानी ये जो आफ्टरनून इवनिंग ये भी डेज के देखो मतलब सॉरी टाइम है, यानी ये भी डे का पोर्शन है, ठीक है, डे का जो है वो एक पार्ट है, तो इसीलिए जो लॉन्गर पार्ट होता है, जो वाइडर पार्ट होता है बेटा, जो वाइडर पार्ट होता है उस वाइडर पार्ट के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल करते हैं या इन इस्तेमाल करते हैं। जो डे का या टाइम का वाइडर पार्ट होता है उसके साथ आप ऑन इस्तेमाल करते हैं या इन इस्तेमाल करते हैं। ऑन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब डेज एंड डेट्स की बात हो, जब डेज एंड डेट्स की बात हो। डेज और डेट्स कौन से होने चाहिए, एक तो नाम वाले होने चाहिए और दूसरा इवेंट्स या त्योहार वाले जो होते हैं ऐसे होने चाहिए, तब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें इन भी हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो वाइडर टाइम होता है, मंथ्स का वाइडर टाइम होता है, ईयर्स का देखो वाइडर टाइम होता है, तो ऐसा टाइम जब होता है देखो हम इन जो वो या डिकेड्स होते हैं, आप देखो तब हम इस्तेमाल करते हैं, तब प्रीपोजिशन हम इन इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो वो जहन में रखना है कि ऑन हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इन हम किस तरीके से, और एट जो होता है बिल्कुल जो मतलब ब्रीफ टाइम होता है डे का, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो 15 नंबर है, साइंटिस्ट आर मूविंग डैश द कंक्लूजन, डैश द कंक्लूजन, बेटा देखो सी होगा, टू वर्ड या टू वर्ड्स होता है, हमने टू भी दिया, इधर ज्यादा क्लोज ऑप्शन देखो यानी टू वर्ड और टू का होता है, लेकिन टू वर्ड जो होता है यानी ये डायरेक्शन को शो करता है, मतलब किसी तरफ डायरेक्शन शो करता है, और ये डेस्टिनेशन को शो नहीं करता, मतलब डेस्टिनेशन जो एंट्री वाला होता है बेटा, टू में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, जब कोई एंट्री होती है, ठीक है, जब कोई एंट्री वाला कॉन्सेप्ट होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं टू, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसीलिए हम टू वर्ड इस्तेमाल करेंगे, या इसका सेकंड जो वर्ड है टू वर्ड्स वो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तब जो है हमारा ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। अच्छा, अब ये हो गए आपके सेंटेंस कंप्लीशन वाले। उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट है आपके सेंटेंस करेक्शन। बेटा देखो ये भी बहुत आसान पढ़े आप, जो वो प्रीपोजिशन जिस जगह जिस जो वर्ड के साथ इस्तेमाल हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को देखें और क्या होता है। आई ड्रू अ लॉन्ग लाइन अक्रॉस द वाइड पेज। लाइन होती है बेटा, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हम लाइन निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं या ऐसे निकालते हैं, तो इस टाइप से हम जो निकालते हैं लाइन, उसके लिए प्रीपोजिशन आप अक्रॉस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए आप नंबर सेकंड है, आई एंजॉयिंग बीइंग बिटवीन माय मेनी क्लास फेलोज। मैंने ये पहले भी आपको करवाया था, ड्यूरिंग माय मेनी क्लासेस, व्हाइल माय मेनी क्लासेस। तो आप देखें इसके अंदर डी लास्ट ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि मेनी लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है, ग्रुप लिखा हुआ, क्राउड हो, देखो ग्रुप हो, क्राउड हो, मेनी हो, सेवरल हो, ऑल हो, ज्यादा वाली बात होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग इस्तेमाल करेंगे। 3 ऑफ द आई पुट द टेबल क्लॉथ एट द टेबल, अपॉन द टेबल, ओवर द टेबल। बेटा इसके अंदर सी सही होगा, क्योंकि ये स्प्रेड वाला सेंस, कवरिंग वाला सेंस देखो इसके अंदर आ रहा है, तो कवरिंग वाले सेंस में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन ओवर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नंबर 4 देखें, शी वोर एन ओवरकोट ऑन हर सूट। ठीक है, तो भाई देखो इधर भी उसके ऊपर कवरिंग वाला सेंस आ रहा है, इस स्टेटमेंट में भी कौन सा सेंस आ रहा है, इस स्टेटमेंट में भी बेटा कवरिंग वाला सेंस आ रहा है। तो कवरिंग वाला सेंस जो है वो हमें स्टेटमेंट के डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, ना ऑन में, ना अबव में, ना अपॉन में। तो कवरिंग सेंस के हिसाब से आप देखो, यानी जो लास्ट ऑप्शन है ओवर इस्तेमाल करेंगे, यानी एन ओवर कोट ओवर हर, ओवर प्रीपोजिशन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे कवरिंग वाले सेंस में। अच्छा उसके बाद नंबर 5 है, ही हेल्ड लार्ज अम्ब्रेला टू हर, ऑन हर, ओवर हर। बेटा देखो ये भी कवरिंग है, ये भी स्प्रेड हो रहा है, तो इसीलिए इसमें भी देखो सी। बहुत आसान है, आप देखो अबव बेटा इस्तेमाल होता है ऊपर के लिए, लेकिन वर्टिकल यूज हो उसमें, जब वर्टिकल यूज होगा तब हम इस्तेमाल करते हैं। 6 देखो, देयर आई सॉ अ ब्रिज ओवर द रिवर, एट द रिवर, टू द रिवर, अबव द रिवर। आप देखो रिवर को ये कवर करता है, ठीक है, तो इधर भी हम जो इस्तेमाल करेंगे ओवर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अबव के अंदर कवरिंग नहीं है, अबव के अंदर कवरिंग नहीं है, वो वर्टिकल का सेंस जो वो इसके अंदर ज्यादा होता है, इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवर इस्तेमाल करेंगे। वी यूजुअली वॉक इन डॉन, तो डॉन देखो एक ब्रीफ टाइम भी हमने आपको बताया डे का, तो इसीलिए 20 सेकंड बेटा आपका राइट ऑप्शन होगा। 8 में आप देखें, वी आर हैविंग अ पार्टी एट, बेटा डेट है, ठीक है, डेट जब होती है डे, मैंने अभी आपको बताया, तो इसके अंदर देखो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑन 7th। अच्छा उसके बाद नंबर 9 है, आई प्लान टू विजिट माय अंकल ऑन दिस ईद। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया, जब कोई त्योहार की बात होती है, ठीक है, या किसी इवेंट की बात होती है, तब देखो हम ऑन प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लॉन्गर टाइम आ गया है, अब लॉन्गर टाइम के लिए या वाइडर टाइम होता है, अभी हमने पढ़ा है, तो उसके लिए आप देखो इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा केट सेट सरफेस पे, किसी सरफेस पे बेटा बैठा हुआ है, तो मेट सरफेस है, तो सरफेस के लिए हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, 20 सेकंड द केट सेट ऑन द मेट। देखो सरफेस वाली बात है, बाकी जो भी है सरफेस वाली बात नहीं है, ये इनसाइड वाली बात होती है, तब इस्तेमाल करेंगे। 12 नंबर में आप देखें, आई एंजॉय वॉचिंग द प्लेन्स फ्लाई ऑन मी, अपॉन मी, अबव मी, अप टू मी। बेटा देखें वर्टिकली उसके ऊपर है, कवरिंग नहीं है, देखो प्लेन्स उसको पूरा कवर नहीं कर रहे हैं, स्प्रेड नहीं हो रहे हैं उसके ऊपर, तो ये डिफरेंस है देखो ओवर और अबव के अंदर, तो इसीलिए इधर जो हम राइट ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, सी राइट ऑप्शन हमारा होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन सी होगा इधर। तो इस तरीके से ये सारे प्रीपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं। ये प्रीपोजिशंस जो मैं कल से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक्सप्लेन करवा रहा हूँ बेटा, इन प्रीपोजिशंस में से आपकी टेस्ट आएगी, यकीनन आप इनको अच्छे नमूने से आपने पढ़ा होगा, समझा भी होगा, ठीक है। ये हम सारे मेरे ख्याल में कवर हो गए, कोई ऐसा नहीं है जो अभी बाकी रह रहा हो। इंशाल्लाह आपकी टेस्ट अच्छी हो जाएगी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी, ठीक है ना, आप मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।